अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम्। शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागं पाशं च घण्टां डमरुकसहितं साङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। पार्वतीशं नमामि। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणीविनायकं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। हे पार्वती शिव शंकर हर हर महादेव। चलिए हम 2 मिनट के लिए अपने मन को शांत कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। Laten we proberen via korte meditatie ons gedachten tot rust te brengen, zodat we met volle aandacht hier aanwezig kunnen zijn. We weten allen, आप सभी जानते हैं, भगवान शिव योगीश्वर है
अगर आप उनको देखेंगे कि वो ध्यान में बैठे रहते हैं, तो चलिए हम भी उनके अनुकरण करते हैं. Laten we proberen het voorbeeld van Bhagwan Shiv ook te volgen en onszelf in meditatie te brengen. Zit recht op je stoel of waar je zit op de grond. En met recht bedoel ik je hoofd, je nek en je wervelkolom op één lijn. Laat je oogleden langzaam dichtvallen. Laat je wervelkolom gestrekt zijn vanuit je kruin. Dat je niet ingezakt zit, maar met een rechte rug. Met een rechte wervelkolom. Laat je gedachten niet afdwalen naar het verleden of naar de toekomst. Maar wees met je gedachten hier op de plaats die je lichaam inneemt van top tot teen. En wees bewust van jezelf van top tot teen. Ervaar je hele lichaam zoals je hier zit, in deze houding, in deze deel. In het hier en word bewust van je voorhoofd en ontspan je voorhoofd. Laat je voorhoofd zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan de spieren van je gezicht. Laat je gezicht zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan je schouder en je schoudergewicht en laat je schouders zakken en helemaal ontspannen zijn. Ontspan je borst en je hartstreek. Ontspan je buik en je navelstreek. Ontspan je heup en je heupgewichten. En ontspan de rest van je lichaam tot aan je teenttoppen. Laat je lichaam helemaal ontspannen zijn. En breng vervolgens je aandacht naar je ademhaling. En wees bewust van je ademhaling. Observeer je ademhaling zoals die komt en gaat. En laat door deze observatie van je ademhaling, zonder hapering, zonder stoot, zonder geluid en zonder een te lange pauze tussen de in- en de uitademing zijn. Laat je ademhaling diep gaan door je buik en je navelstreek. En laat het langzaam tot rust komen. Een diepe, zachte, vloeiende ademhaling. Die gaat tot je buik en je navelstreek. En voel je de stroom en de aanraking van je ademhaling. In en door je neus gaan. Voel je de stroom en de aanraking van je ademhaling. In en door je neus gaan. En denk in je gedachten bij de ademhaling mentaal aan Om Namah Shivaya. Bij de inademing denk je aan Om Namah Shivaya. En bij de uitademing opnieuw aan Om Namah Shivaya.
concentreren op de stroom en de aanraking van je ademhaling in je gedachten. Doe dit voor 3 ademhalingen. Zal even niet zeggen, probeer je gedachten tot rust te brengen. En alleen de mantra Om Namah Shivaya in je gedachten. Met je ademhaling. 3 ademhalingen. In en door je neusgaten blijft voelen. En in je gedachten, de mantra Om Namah Shivaya aanwezig is, doe je ogen weer langzaam open. En mag je weer ontspannen gaan zitten. धन्यवाद। आइए इस देव मंदिर के प्रांगण में हमारे आदरणीय पंडित स्वदेश देसाई दुबे जी जो आज पूजा के कार्य यहाँ संभाल रहे हैं, बीच में हम देख रहे हैं हमारे आदरणीय पंडित जी नारायण मथुरा जी हैं, उनको भी स्वागत करते हैं। विद्वतगण, कीर्तन समाज, आप सभी भक्तजन, आपको हार्दिक स्वागत है इस महाशिवरात्रि के अवसर पर कि आप अपने अमूल्य समय को निकाल करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। Van harte welkom in Deelmandir op deze perwe, de Mahashivratri, dat u uw kostbare tijd heeft vrijgemaakt om hier aanwezig te zijn. Uw tijd is kostbaar, omdat tijd wat voorbij is, nimmer terugkomt, nimmer teruggebracht kan worden. En zo is het ook met onze ademhalingen, हमारे प्रिय भक्तजन। जितना श्वास व्यतीत हो जाता है, उतना हमारी आयु कम हो जाती है और हम उस श्वास को पुनः फिर वापस नहीं ला पाएंगे। तो जो आप अपने श्वास, अपनी अमूल्य समय को सत्संग में बिताते हैं, परमात्मा के सानिध्य में बिताते हैं, परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए बिताते हैं, वही समय सही माने में आपके लिए सार्थक होता है। तो आज आप सभी भगवान देव आदिदेव महादेव करुणा अवतार भूत भावन भोलेनाथ आशुतोष करुणा वर्णालय जोगीश्वर भगवान शिव शंकर के चरणारविंद में उपस्थित हुए हैं इस महाशिवरात्रि के पर्व मनाने के लिए। और आप इतने तादाद में आए हैं, आपके अंदर अपने धर्म के प्रति, इस सनातन धर्म के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, इसलिए आप आते हैं मंदिर। हम परमात्मा से ही प्रार्थना करते हैं कि आपके जो यह विश्वास, श्रद्धा, आस्था है जो अपने धर्म के प्रति, अपने देवताओं के प्रति, अपने सभ्यता के प्रति, यह आस्था दिन के दिन दृढ़ होते जाए। Ik bid, beste mensen, voor het geloof dat jullie hebben in de Sanatan Dharma, voor de Shraddha, het vertrouwen dat jullie hebben in de Sanatan Dharma, dat die Shraddha en die geloof steeds met de dag sterker wordt en dat u uiteindelijk de zegen van Bhagwan Sri Sambhasda Shiv, Dev Adidev Mahadev kunt krijgen. Daarvoor zijn we vandaag hier
om deze Shivratri, Mahashivratri te vieren. Het is een bijzondere nacht, एक महान रात्रि है जो वर्ष में एक बार आता है। वैसे तो शिवरात्रि हर एक रात्रि शिवरात्रि है, eigenlijk is elke nacht शिवरात्रि। रात्रि में दरअसल में क्या होता है कि हम जो होते हैं मनुष्य, जो दिन के प्राणी होते हैं, अपने आप को अंदर ले जाते हैं, भीतर ले जाते हैं। Wij trekken ons terug uit het leven als het 's avonds wordt, beste mensen. Dan trekken wij ons terug in onze huizen। ऐसे ही प्रकृति में जितने प्राणी हैं अपने आप को, जैसे चिड़िया होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, वो अपने को भी तरफ ट्रैक करके अपने हॉल में या अपने नेस्ट में चला जाते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी अपने आप को अंदर जाते हैं, दुकान बंद हो जाते हैं, सभी अपने घरों में प्रवेश करके अपने घर में समय बिताने लगते हैं। अंततो गत्वा आप जा करके थके मांदे जब अपने खाट पे पड़ जाते हैं, als u aan het eind van de dag nadat u hard hebt gewerkt en zich terugtrekt als het 's avonds wordt, beste mensen, dan gaat u weg uiteindelijk in uw bed en al uw gedachten trekken zich terug uit de wereld. Want als uw gedachten zich niet terugtrekken uit de wereld, kunt u niet in slaap gaan. U weet het wel, soms als onze gedachten aan de gang zijn en onze gedachten houden zich bezig met wereldse dingen en we kunnen dat niet loslaten, dan vallen wij moeilijk in slaap. इसलिए हम जब सोना चाहते हैं रात्रि को, तो हमें जो वृत्ति है, हमारे मन में जो वृत्ति है, उसको हम शांत होना चाहिए, वृत्ति को शांत होना चाहिए, तब फिर आप निद्रा में जा सकते हैं। उस शांत होने का अभिप्राय यही कि एक प्रकार से आपके जीवन में एक प्रलय आता है। इसलिए भगवान शिव को हम प्रलय के देवता कहते हैं। भगवान शिव is de deelta van pralay, verliest lupena leer. Leer betekent dat u zich terugtrekt. Het leven trekt zich terug, beste mensen. En als de kosmos zich helemaal terugtrekt, teruggaat naar de oorsprong, dat noemen wij een pralay. En u hoorde net, Bhagwan Shiv is de deelta van pralay en vaak wordt dat vertaald door mensen met de god van de vernietiging. Maar zo is dat niet. God vernietigt niet. जब भगवान शिव को हम कहते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो कर्पूर गौरम, so with als comfort, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो परमात्मा करुणा के अवतार है, betekent de godheid van compassie, de अवतार, de neerdaling, de manifestatie van compassie, वो कैसे vernietig कर सकता है, वो कैसे नाश कर सकता है। नाश का देवता नहीं हमारे भक्तजन, प्रलय का देवता है। और उसको नीदरलैंड्स में आप पड़ताल कर सकते हैं तो आप सुने ट्रांसफॉर्मेशन, या एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं dissolution, terugtrekking als materie zich terugtrekt naar zijn oorsprong. Als uw gedachten zich terugtrekken naar de oorsprong, valt u in slaap. Isliye आप निद्रा में जा सकते हैं। Als de materie zich weer terugtrekt in de natuur, valt uw lichaam uit elkaar, beste mensen. Dat noemen wij dood. Dat is ook een pralay. Als het hele universum zich terugtrekt naar zijn oorsprong, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग से हुआ है ये सारी सृष्टि, het is ontstaan uit een oerknal. Als het terugtrekt naar zijn oorsprong, dat noemen wij pralay. Isliye
भगवान शिव प्रलय करके, जिसमें प्रलय होता है उसी में से फिर प्रकट करता है एक नया सृष्टि, एक नया सृष्टि। आप जब सो जाते हैं तो वही भगवान शिव आपको ले जाकर के वहां एक अवस्था में ले जाता है जहां पर आप शांति अनुभव कर सकते हैं। भगवान शिव आपको ले जाते हैं गहरे निद्रा में, जहां पर आप भगवान के नजदीक होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं रहता क्योंकि आप सो जाते हैं कि भगवान आपके पास है। और जब आप जागते हैं, als u in diepe slaap gaat, beste mensen, en u wordt weer wakker, dan ervaart u echt dat u uitgerust bent. U zit vol met energie, nieuwe moed, nieuwe energie om er weer tegenaan te gaan. Maar als u de hele avond blijft dromen, dan zult u voelen dat u niet uitgerust bent. Omdat uw gedachten nog actief waren. तो प्रलय का अभिप्राय यही है कि आपके gedachten trekken zich helemaal terug naar de bron. Uw gedachten komen tot rust en u komt met uw bewustzijn heel dichtbij जिसको हम शिव तत्व कहते हैं, जिसको हम तुरीय कहते हैं। भगवान शिव तुरीय अवस्था है, उसी को हम शिव कहते हैं। तो प्रलय का देवता नहीं है भगवान शिव, करुणा अवतार है। करुणा वर्णालय भगवान शिव, उसकी असीम कृपा से हम यहां पहुंचे। तो हर एक रात्रि शिवरात्रि, और महीने में भी हम शिवरात्रि मनाते हैं। महीना में एक बार जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी है तिथि, उस रात्रि को भी हम शिवरात्रि मनाते हैं और कई मंदिरों में भी हम अभिषेक करते हैं। तो हर एक रात्रि, elke nacht, beste mensen, is शिवरात्रि 1 keer per maand op de 14e तिथि van de afnemende maand, Krishna Paksh, vieren wij ook शिवरात्रि। लेकिन यह शिवरात्रि जो है, यह फाल्गुन मास की शिवरात्रि जो है, चतुर्दशी जो है, यह शिवरात्रि, इस चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के जो रात्रि है, उसको हम कहते हैं महाशिवरात्रि। वह शिवरात्रि नहीं है, वो महाशिवरात्रि, और वह सिर्फ वर्ष में एक बार आती, वह रात्रि वर्ष में एक बार आती है। तो आज हम जो भी आप आए हैं इस मंदिर में, आप के लिए वह रात्रि है जिसमें हमने अपने मन, अपना जो मन है, हमको शिव संकल्प बनाना है। शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है, इसमें कहा गया है, उसमें एक सूक्त है, er zijn een aantal mantras in de शुक्ल यजुर्वेद, प्रिय भक्तजन, जिसको हम कहते हैं शिव संकल्प सूक्त। उसमें 6 मंत्र है शुक्ल यजुर्वेद में, और उसका पहला मंत्र यही है कि जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आप सभी बोलिए, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें ऋषि प्रार्थना करते हैं, शिव संकल्प ऋषि, इस सूक्त का जो ऋषि है उसको कहते हैं शिव संकल्प। और इस सूक्त का देवता जो है, onderwerp van deze सूक्त, dat is onze mens, onze geest, onze mind। और क्या प्रार्थना करता है ऋषि कि जब जागृतो दूर मुदैति दैवम, जो जागृत अवस्था में जो हमारा मन होता है बहुत दूर तक जाता है। Als wij wakker zijn, is onze geest actief in de wereld en onze geest, onze mind, onze gedachten gaan overal naartoe. In de hele wereld kunnen als het ware in onze geest aanwezig. De hele wereld kan in onze geest aanwezig zijn, beste mensen. Op die manier, omdat onze gedachten overal naartoe gaan. Je जाग्रतो दूर मुदैति दैवम तदु सुप्तस्य। इसी प्रकार से जब आप सो जाते हैं तो आपका मन स्वप्न अवस्था में भी
बहुत दूर दूर जाता है, भ्रमण करता है आपका मन। और ऋषि प्रार्थना करता है, जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वह मेरा मन जो दिन में भ्रमण करता है और रात्रि में भी स्वप्न अवस्था में इधर उधर भ्रमण करता है, वह मेरा मन जो दिव्य मन है वह शिव संकल्पमय बने। शिव संकल्प का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं, जब पंडित पूजा कराते हैं तो संकल्प बोला जाता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अदृश्य ब्रह्मणोत्पीय परार्थे आदि आदि, इसको कहते हैं संकल्प. En gelofte wordt uitgesproken, een besluit wordt uitgesproken dat de puja die wij gaan doen, waarvoor de puja is, wanneer het uitgevoerd wordt, etcetera, etcetera. Dat wordt in de sankalp allemaal gezegd, beste mensen. और वही संकल्प हमारा मन जो है संकल्प करे कि हम यह पूजा करना जा रहे हैं. अगर मन संकल्प नहीं करेगा तो विकल्प करेगा. Uw man, onze man zit vol met twijfels. Waarom? Omdat onze man, onze geest, onze gedachten geen ogen hebben, beste mensen. आंख किसके पास है? हमारे बुद्धि के पास. Ons intellect kan zien, maar onze mannes kan niet zien. Het zit vol met gedachten. आज जो ऐसा सोचता है तो कल ऐसे सोचेगा. आज कहेगा कि यह मंदिर जाना है, कल सोचेगा कि कौन जाएगा रात्रि. आज हमारा सीरियल चलता है टेलीविजन पे, आज हम अपना सीरियल को देखेंगे. तो वो मन जो आपका है वह संशय से भरा हुआ है. संकल्प इसको कहते हैं और विकल्प कहते हैं. तो अपना मन जो है उसको शिव संकल्प बनाना है. इसका अभिप्राय है. Dat betekent dat wij onze mannes standvastig moeten laten zijn in de Shiv Sankalp. Shiv betekent kalyaankaar. Dat wat ons leidt naar het goddelijke, beste mensen. Dat wat ons leven voorspoedig maakt. Dat wat ons leven zegent. Dat is Bhagwan Shiv. En als wij onze mind, onze geest Shiv Sankalp maken, betekent dat wij onze geest zodanig proberen te laten zijn dat het ons helpt om het goddelijke te realiseren. En dat is het doel van ons leven, beste mensen. हमारा जीवन जो है शिव संकल्पमय बने और अपने लिए कल्याणकारी सिर्फ नहीं लेकिन समाज के लिए. U hoorde net de jonge politici die hier voor u gezegd hebben waarvoor ze staan in de samenleving. Sewa voor anderen. Dat is wat politici doen in de maatschappij, in de samenleving. Ze zijn voor anderen. Om vooruitgang in de maatschappij te brengen. En dat is waar wij onze krachten ook, onze krachten en onze energie aan toe moeten zetten, beste mensen, om ook daarin mee te helpen. Het is niet alleen kalyan voor mijzelf, ik en de rest mag steken. Maar het is, ik probeer mijn leven omhoog te brengen, Paramatma की ओर te brengen, maar met die zegen, met de kracht die ik van Paramatma krijg, ga ik de anderen ook helpen. De maatschappij proberen daarin mijn krachten te geven, beste mensen. Daarover gaat dharma. Dharma वहीं से शुरू होता है. तो आज का रात्रि जो है हमारे भक्तजन, ये महाशिवरात्रि, इस रात्रि जो है, अगर भगवान की कृपा की वर्षा आज हो रही है, de zegen van God regent als het ware vandaag. Het is overal en alomtegenwoordig en het is voelbaar vandaag deze nacht. Daarom is het een speciale nacht, beste mensen. Maar er kan regenen van boven en u kunt nog steeds zeggen, mijn glas is nog steeds leeg. Het kan pijpenstelen regenen, deze Nederlandse woord te hen. Heel hard regenen, maar uw glas kan nog steeds leeg zijn. Wat betekent dat?
dat er iets aan de hand moet zijn met uw glas. Misschien hebt u dat omgekeerd gezet, dat er geen regen erin kan vallen. Misschien zit er een gat in uw glas, dat alles wat erin valt ook weer eruit gaat. तो हमें जो पात्र है हमारे जीवन में, हमारा जो पात्र है उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें पात्र आज सीधी रखनी चाहिए. Wij moeten dat rechtop zitten, zodat wij de zegen van God kunnen voelen, ervaren, beste mensen. En daarom gaan wij dat vanavond ook doen. Met kirtan, met dhyan, met bhajan, met archana, met abhishek, met mantra jap. Dat zijn de manieren om onze glas rechtop te zetten, zodat wij de zegen van God kunnen ontvangen, die vandaag aanwezig is, beste mensen. तो आज हम इस रात्रि को भी जागरण करें. ये सोने वाली रात्रि नहीं है कि आज हम जा करके सो जाए. आज जागने के लिए रात्रि है और जागृति प्राप्त करने के लिए. Het is een nacht. Niet om te slapen, maar om wakker te zijn. Om wakker te blijven. Maar niet zomaar wakker blijven, mensen. Om echt te ontwaken naar onze ware bewustzijn. Naar onze ware essentie. कि हम कौन हैं. कि हमारा जो आंतरिक परमात्मा जिसको हम कहते हैं वह कहाँ है. वो कैसे हम अनुभव करें. उसके लिए आप इस रात्रि मनाते हैं. सिर्फ जागरण, आंख खोल के जागना, उसको जागरण नहीं कहते. अपने अंदर जो आत्मा है, जो परमात्मा है आपके अंदर, उसको अनुभव करने के लिए dat noemen wij ontwaken. Dat noemen wij waken. En daarmee, met die jaageren, door het waken op die manier, dat wij daadwerkelijk ontwaken voor de werkelijke essentie in ons beste aard, de आत्मा in onszelf. तो ऐसे जागरण हो जिससे आप जागृति प्राप्त करें. जिस प्रकार से भगवान बुद्ध, Gautam Buddha worden ontwaakt genoemd. Waarom wordt hij ontwaakt genoemd? Hij is daadwerkelijk wakker geworden. Waarvoor is hij wakker geworden? Voor zijn ware essentie. Voor de Atman die in hem is. Er wordt gezegd dat hij op een keertje nam hij dat besluit. Dezelfde Shiv Sankalpa waar ik het net over had. Hij nam het besluit. Er was een Brahman die heette Sumedha. एक ब्राह्मण था जिसको सुमेध. उस ब्राह्मण ने यह संकल्प लिया, यह शिव संकल्प जिसके बारे में अभी चर्चा की. Hij zei tegen zichzelf: ik wil verlichting bereiken. Ik wil zelfrealisatie bereiken. Ik wil ervaren wat God is. Niet alleen erover horen, mooie kathas luisteren, maar ik wil dat daadwerkelijk ook ervaren. Dus die nam het besluit, die nam de Shiv Sankalp. Ik wil verlicht raken. En vanaf dat moment, beste mensen, vanaf het moment dat hij dat besluit nam, tot hij uiteindelijk verlichting bereikte als Gautama Buddha, heeft het 500 levens genomen voordat hij dat bereikte. 500 levens. Heeft hij dat bereikt en daarom wordt hij de ontwaakte genoemd. Buddha betekent de ontwaakte. तो इसी प्रकार से आज जो रात्रि है हमारे भक्तजन, आप उस शिव संकल्प को दृढ़ करें ताकि आप भी एक समय, एक जीवन में, चाहे इसी जीवन में आपका संकल्प दृढ़ हो तो इसी जीवन में उस परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं. लेकिन वह दृढ़ता प्राप्त करना मुश्किल होता है. इसलिए कई जन्म लग जाते हैं कि हम वहां तक पहुंच पाते जहां तक भगवान बुद्ध पहुंचे और जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने चर्चा करते हैं, योगियों ने चर्चा करते हैं और जो हमारा भगवान योगीश्वर जिसका आदर्श है. तो चलिए एक कथा की ओर चलते हैं. आज की जो रात्रि आप जानते हैं, कम से कम 3 कारण हैं जिससे हम रात्रि मनाते हैं. Waarom vieren we deze रात्रि, beste mensen? 3 redenen. Ten minste, आज की रात्रि हम कहते हैं कि उस अखंड ज्योति जिसको हम लिंग कहते हैं, ज्योतिर्लिंग, उसकी प्राकट्य हुआ. उस ज्योतिर्लिंग की प्राकट्य इसी दिन हुआ. Pilaar van licht, zuil van vuur is vandaag
Op deze raadvloer is dat ontstaan, die wij als de Jyotirlinga kennen, beste mensen. इसी रात्रि भगवान पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ। इसी रात्रि ब्रह्मदेव के शरीर से भगवान रुद्र की प्राकट्य हो। तो इसलिए और इसी रात्रि को कहा जाता है भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया, जिसका प्रलय के नृत्य कहते हैं। तांडव नृत्य, द प्रलय, dissolutie van het heelal, terugnemen naar de oorsprong. De dans van de तांडव heeft भगवान शिव vandaag ook gedaan। तो कम से कम 3-4 कारण होते हैं जिससे आज हम शिवरात्रि मनाते हैं। आज उस कथा जो ज्योतिर्लिंग की कथा है हम आपको सुनाने जा रहा हूं। एक बार भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु से ये विवाद छिड़ गया। kwam een discussie tussen Brahmadev, de schepper van deze kosmos, en Bhagwan Shiv, de palenkarta, de onderhouder van deze kosmos, raakten elkaar met een discussie van wie is groter। ब्रह्मदेव जी ने कहा कि मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं। Is hele heelal, beste mensen, is immens groot। Brahmadev zegt, die heb ik geschapen, die heb ik gemanifesteerd en daarom ben ik groter। इसमें 14 भुवन हैं, इसमें 84 लाख योनि हैं। En dat heeft heel veel moeite gekost om dat te manifesteren। इसलिए मैं बड़ा हूं, ब्रह्मदेव जी ने कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि आप इस सृष्टि तो कर दिए, लेकिन उसको पालन करने में जो हमें समय लगता है, जो इतना कठिन है, वो तो मैं करता हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं। अब ये विवाद हो गया कि कौन बड़ा है। पालन करना कोई खेल नहीं है। एक बार हमारे देव ऋषि नारद गए भगवान विष्णु के पास। देव ऋषि नारद गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपको पालन करते करते जब से ये सृष्टि है तब से आप पालन के कार्य कर रहे हैं, आपने कभी एक दिन के लिए विश्राम नहीं लिया। देव ऋषि नारद came to भगवान विष्णु and said, you have also long deze kosmos, die al sinds zijn ontstaan heb je zo lang onderhouden en je hebt nooit één dag uitgerust. Je hebt nooit een dagje verlof genomen om te rusten। तो नारद, देव ऋषि नारद कहते हैं, प्रभु आप एक दिन के लिए आप विश्राम ले लीजिए और मैं ये पालन का कार्य करूं। ऐसे it will één dag ten minste palen doen en u kunt naar rusten, zegt Dev Rishi Narad। Ik heb in de hele kosmos rondgedwaald en ik weet precies waar alle levende wezens zijn en wat ze allemaal nodig hebben, zo ik kan in hun onderhoud voorzien, zegt Dev Rishi Narad। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नारद जी, ये कठिन कार्य है, आप नहीं कर पाएंगे। U kunt het niet doen, het is moeilijk, niet iedereen kan dit doen। भगवान देव ऋषि नारद प्रार्थना करते हैं, अंतोगत्वा भगवान कहते हैं, ठीक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप एक दिन के लिए आज ये पालन की कार्य आप अपने ऊपर ले लीजिए। देव ऋषि नारद जाकर ध्यान में बैठ जाते हैं और पूरे ब्रह्मांड का ध्यान रखते हुए जहां पे जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी प्राणी हो इस ब्रह्मांड में, in de hele kosmos waar de levende wezens zijn, en datgene wat ze nodig hadden, dat voorziet Dev Rishi Narad तुरंत। देव ऋषि नारद बैठ करके ध्यान लगा करके देखते हैं, जहां भी जो जिसकी आवश्यकता है वो पूरे कर देते हैं, तुरंत ही पूरे करते हैं। लेकिन उस सृष्टि में एक व्यक्ति था, er was een man in de kosmos, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, dat hij wakker werd, begon hij God uit te schelden। वो व्यक्ति सुबह से जब से वो मानो
बिस्तर छोड़ते तब से वो गाली शुरू कर देते देने के लिए, भगवान को गाली दे, और जब तक जा करके सो जाते तब तक गाली देते हैं। De hele dag schold hij God uit. Deel Rishi Narad, die zag deze man in zijn meditatie en dacht, wat is dit voor een man? Deze man verdient een straf. Hoe kan hij zo God uitschelden? तो देव ऋषि नारद सोचते हैं कि इसको दंड देना चाहिए। देव ऋषि नारद उस दिन उस व्यक्ति को किसी प्रकार के भोजन आदि का प्रबंध नहीं किया और उस व्यक्ति भूखा रह गया। जब 12 बजे रात्रि हुआ, 12 बजे रात्रि माने वो दिन बीत गया, नारद पालन करते करते नारद जी जब वो दिन बीत गया तो भगवान ने नारद जी को याद किया। नारद जी को याद किया, नारद तुरंत पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी आप पालन का कार्य अच्छे प्रकार से किए, सभी व्यवस्था आप कर दिए। नारदेव ऋषि नारद कहते हैं जी प्रभु अवश्य हो गया। भगवान विष्णु कहा ध्यान देकर देखो, आपने सभी को यथाउचित आपने सेवा कर दिया। नारद जी ने कहा प्रभु बस एक ही दुष्ट व्यक्ति है जिसको मैं आज भोजन नहीं दिया, क्योंकि वो आपको दिन भर गाली दे, तो इसलिए उसकी व्यवस्था नहीं की। तो भगवान विष्णु ने कहा देव ऋषि नारद इसलिए मैं कहता था कि यह पालन का कार्य जो है ये कठिन है, सभी नहीं कर पाएंगे। क्या एक माँ एक छोटा शिशु के लेकर के अपने गोद में, और वो छोटा शिशु छोटा सा बच्चा जो है माँ के गोद में बैठा हुआ और माँ को लात मारे, माँ के बाल खींचे, कभी कभी करते हैं ना बच्चा ऐसे जब गुस्सा में होते हैं तो माँ के बाल भी खींचते हैं, माँ को लात से मारते हैं, तो क्या माँ उसको उठा करके पटक देता है? नहीं करता है। तब भी उसका सेवा करता है, उसके सेवा करते हैं, उसके देखभाल करते हैं, उसके पालन करते हैं। इसी प्रकार से भगवान विष्णु कहते हैं कि इस सृष्टि में जो है हम सभी के पालन करते हैं, चाहे कोई हमें गाली देता है, चाहे फूल चढ़ाते हैं, चाहे माला अर्पण करते हैं। तो यह पालन का कार्य जो है वो कठिन। तो यह विवाद है। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं बड़ा क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं बड़ा क्योंकि मैं पालन करता हूं। अब जब मेरे निर्णय नहीं हो पाया तुम सभी भगवान विष्णु ब्रह्मदेव खीनसना भगवान शिव के पास गए, क्योंकि भगवान शिव पंच है। Hij is degene, hij fungeert als een soort rechter voor de deeltas. Als er oneenigheid is onder de deeltas en er moet een besluit worden genomen, तो भगवान शिव शंकर के पास जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव शंकर पंच है। भगवान शिव के कई मुख है? 5 मुख। इसलिए भगवान शिव को पंच कहते हैं। यजुर्वेद में भगवान शिव को सभापति भी कहा जाता है। इसको फोर्स से परफॉर्म देवता। नमो नमोभ्यो नमो सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो। इस प्रकार से अभी हम अभिषेक करेंगे, तो इन मंत्रों का हम पाठ करेंगे। उसमें कहा गया कि भगवान शिव देवताओं के सभापति, तो निर्णय के लिए सभापति के पास गए, तो भगवान अपने अपने दावा को पेश किए भगवान शिव के। Ze legden hun probleem voor, hun oneenigheid voor aan भगवान शिव। अब भगवान शिव ने सोचा हम किसको बड़ा कहें और किसको छोटा कहें। सृष्टि का कार्य जो है वो भी श्रेष्ठ है और पालन का कार्य भी श्रेष्ठ है। Zowel het onderhoud als de manifestatie zijn even belangrijk, beste mensen. Dus भगवान शिव dacht, wie moet ik nou zeggen wie groter is en wie kleiner is? तो भगवान शिव उस समय एक ज्योति स्तंभ, een pilaar van licht, एक ज्योतिर्लिंग को प्रकट कर देते हैं। Een zuil van vuur, een zuil van licht, een pilaar van licht. Die geen begin en geen einde had. एक अनादि अनंत शिवलिंग, एक ज्योतिर्स्तंभ को भगवान शिव प्रकट कर देते हैं और कहते हैं दोनों देव से
कि जो इसके आदि या अंत पा जाए वही बड़ा होगा। भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव से कहा कि जो wie in staat is het begin of het eind van deze Jyotirlinga, het pilaar van licht, te zien, te ervaren, tegen te komen, die zal als grootste worden uitgeroepen, als belangrijkste, als प्रथम पूज्य worden uitgeroepen. तो भगवान ने पूछा कि ब्रह्मदेव आप किधर जाएंगे? ब्रह्मदेव ने कहा कि मैं तो कमल में रहता हूं ना, भगवान के नाम ही से कमल और उसमें ब्रह्मदेव जी ने कहा मैं ऊपर जाऊंगा क्योंकि मैं ऊपर रहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा मैं क्षीर सागर में रहता हूं इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। दोनों ने अपने वाहन को ले ली और निकल गए, एक आदि पाने के लिए, एक अंत पाने के लिए। आदि betekent begin, अंत betekent end। उस अखंड ज्योति, अखंड betekent ononderbroken। जब हम प्रार्थना करते हैं अखंड मंडलाकार, वही मंडल आकार जो है वो परमात्मा का एंगल, वह ज्योति जो भगवान शिव ने प्रकट किया अथवा संपूर्ण एंगल पिलार फले सुंदर बहिन सुंदर एंगल आदि अनादि betekent सुंदर एंगल, आदि betekent begin, अनादि betekent सुंदर begin, अंत betekent einde, अनंत betekent oneindig, geen eindig, beste mensen, beste प्रिय भक्तजन। तो इसी प्रकार से ब्रह्मदेव ऊपर चले गए, भगवान विष्णु नीचे को। भगवान वर्षों तक, 1 वर्ष 2 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष मन के गति से एक ऊपर एक नीचे जा रहे हैं। भगवान विष्णु अंततो गत्वा अनुमान लगाते हैं। भगवान विष्णु denkt in zich, hij zegt de Veda zeggen dat भगवान शिव अनादि अनंत is, ब्रह्म परमात्मा is अनादि अनंत zonder begin zonder einde। Dus भगवान विष्णु denkt कि het heeft geen zin, ik heb al duizenden jaren ben ik al zoek naar het begin, maar ik heb het niet gevonden, dus हम कहां तक जाए? इसलिए भगवान विष्णु लौट जाते हैं। भगवान विष्णु लौट जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव पूछते हैं कि भगवान विष्णु जी आप आदि पाए? भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु आपके ना तो आदि है ना अंत है, वेद भी यही घोषित करते हैं, इसलिए हम लौट गए। हम आप इस स्तंभ का ना आदि है ना अंत है। ब्रह्मदेव ऊपर जाते थे, ब्रह्मदेव भी अनुमान लगाया, बहुत वर्षों तक ऊपर जाते जाते सोचा कि इसका अंत अभी नहीं पाया। तो अगर भगवान विष्णु आदि पा लिया होगा और लौट जाए और लौट गए होंगे भगवान विष्णु के पास और वहां पे घोषित कर दिया होगा कि मैंने आदि पा लिया है, तो भगवान विष्णु प्रथम पूज्य हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मदेव dacht, als भगवान विष्णु terug is gekeerd en hij heeft begin gevonden, dan zal ik kleiner zijn en भगवान विष्णु zal groter zijn en zal भगवान विष्णु प्रथम पूज्य zijn, als eerst aanbeden worden en ik als tweede। भगवान ब्रह्मदेव ने सोचा कि ऐसे हम तो नहीं करेंगे। उसके अंदर लालच आ गया कि इस पद के लिए कि मैं बड़ा हूं और घोषित किया जाए कि मैं बड़ा हूं, उस पद के लिए ब्रह्मदेव ने सोचा कि उस पद के लिए हमें तो किसी ना किसी उपाय ढूंढना चाहिए। तो ब्रह्मदेव ने सोचा एक केतकी नाम का पुष्प, केवड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, केवड़ा भगवान पिंडी पर नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को केवड़ा पुष्प जो है नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी। उसका कथा यह है कि ब्रह्मदेव ने कहा, उस केतकी को बुलाया और कहा कि अगर आप जाकर के यह गवा दे, als jij getuigt voor भगवान शिव dat ik jou van boven vanaf het eind van de Shivling heb gehaald en heb gebracht, dan zal ik jou de koning onder de bloemen maken। हम आपको पुष्पों का राजा घोषित कर देंगे। ब्रह्मदेव ने सोचा क्योंकि मैं सृष्टि करता हूं, ik manifesteer de hele kosmos, dus ik kan jou de koning van alle bloemen maken। केतकी पुष्प के ये प्रलोभन देकर के ब्रह्मदेव ने झूठ बोला, लेकिन सोचा कि एक getuige is vaak niet genoeg है, dus we moeten nog eentje hebben। ब्रह्मदेव ने सोचा
गौ माता को बुलाया, गौ माता से कहा आप तो पूज्या है ही नहीं, यू वर्थ अनबेग कहते गौ माता, लेकिन हम आपको और पूज्य बना देंगे। गौ माता ने भी प्रलोभन में आ गया, लालच में आ गया। ब्रह्मदेव ने कहा आपको सिर्फ बोलना है कि आपने देखा कि मैंने एक केतकी पुष्प को ऊपर से, पिंडी के ऊपर से उतार करके लाया, यह बोलना। ठीक, दोनों चल दिए भगवान विष्णु के पास, भगवान शिव के पास आते हैं। ब्रह्मदेव केतकी पुष्प और गौ माता को लेकर के भगवान शिव के पास आते हैं। भगवान शिव के पास आते, भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मदेव बहुत समय आपने व्यतीत कर दिया, या ढेर लगता है तो लगता है आपको अंत मिल गया, लाइफ ऑफ द एंड है परफॉर्म। ब्रह्मदेव ने कहा जी भगवान मैंने अंत को पा लिया, आपके पास कुछ प्रमाण है? भगवान शिव कहते हैं केतकी पुष्प है, इस पुष्प को मैंने पिंडी पर से उतार करके लाया, केतकी आप गवा दीजिए। केतकी पुष्प ने कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मुझको ही ऊपर से उठा करके ब्रह्मदेव ने लाया। फिर और गौ माता ने इसका गवाह भी है कि हम केतकी पुष्प को ऊपर से लाया, अतः गौ माता ने भी अपना गवाह को दे दे। भगवान शिव शंकर वहां पे क्रोधित हो जाते हैं, उनके भ्रिकुटी टेढ़ हो जाते हैं और भगवान ब्रह्मदेव से कहते हैं भगवान शंकर कि आपने पद के लिए, बड़े होने के लिए आपने मिथ्या भाषण किया है। यू हैव खलोग ब्रह्मदेव, यू हैव खलोग om een positie te bemachtigen. En daarom kan jij nooit een goede voorbeeld zijn voor de mensen in deze wereld. ब्रह्मदेव आपने मिथ्या भाषण किया है, यू हैव खलोग, आपने मिथ्या भाषण किया है, इसलिए इस जगत के लिए आप आदर्श नहीं बन सकते हैं। यू कैन नॉट a goede voorbeeld zijn voor the mensen of deze wereld। इसलिए मैं कहता हूं कि इस मृत्यु लोक में आपको मंदिर कहूं नहीं बनेगा, कोई मंदिर आपका नहीं बनाएगा, सिर्फ पुष्कर में छोड़ करके ब्रह्मदेव का मंदिर आप कहीं नहीं पाएंगे। ब्रह्मा का मंदिर आप पुष्कर को छोड़ करके कहीं नहीं पाएंगे और ना कहीं ब्रह्मदेव का पूजन हो करके। और केतकी पुष्प से कहा जो आपको हमारे पिंड पे चढ़ाएगा वो कंगाल हो जाएगा, इसलिए पिंडी पे या भगवान शिव की अर्चना में हम केतकी पुष्प को नहीं प्रयोग करते हैं और ना चंपा को हम प्रयोग करते हैं। और गौ माता से कहा कि गौ माता आप आपके मुंह जो है वह अपवित्र रहेगा। U mond zal onzuiver zijn omdat je hebt gelogen। इसी प्रकार से ब्रह्मदेव केतकी पुष्प और गौ माता को यह दंड मिलता है और भगवान विष्णु से भगवान शिव कहते हैं कि भगवान विष्णु आपने सत्य भाषण किया है। U hebt de waarheid gezegd, je hebt niet gelogen om een bepaalde positie te bemachtigen en daarom zal op deze wereld je overal aanbeden worden. Overal zal er mandirs worden gebouwd en als Ram, als Krishna, als alle altaars die van jou zullen zijn, zullen aanbeden worden। भगवान के जितना अवतार है 24 अवतार सभी को हम पूजे जाएंगे, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस जगत में पूजे जाएंगे और आप इस जगत के पालन करते हुए इस जगत के लिए एक आदर्श बनेंगे। Jij zal een ideaal zijn voor de wereld, hoe de wereld zich moet gedragen। तो इस प्रकार से ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भगवान शंकर से ये सुन करके उसके चरणों में पड़ जाते हैं। Ze vallen neer aan de voeten van भगवान शिव शंकर en vragen, प्रभु, ब्रह्मदेव कहते हैं प्रभु
चाहे हमारे कोई मंदिर ना बने, चाहे हमें कोई पूजा ना करे, लेकिन आपसे ये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमें अपना मंत्र दीजिए, आप अपना मंत्र प्रदान कीजिए ताकि हम आपका मंत्र जाकर के जपे। और यह बात भगवान विष्णु भी कहते हैं कि प्रभु आप अपना मंत्र हमें प्रदान कीजिए और हम जाकर के आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और इस सृष्टि में सृष्टि करेंगे और पालन करेंगे और इसी प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अतः भगवान शिव शंकर, भगवान ब्रह्मदेव को और भगवान विष्णु को वहां अपने मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का दीक्षा देते हैं और उस मंत्र को जपते हैं। तो इस प्रकार से हम भक्तजन इस कथा को हम विराम देते हैं। यह कथा जो ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा है, आज इसी रात्रि वह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ इस और उस प्राकट्य से हम उसी दिन से भगवान शिव को दो रूप में पूजते हैं। एक निराकार स्वरूप, ज्योतिमय स्वरूप, जिसके बारे में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिषाम अभी तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य स्थितम्। Üben het licht der lichten, ज्योतिषाम अभी तत् ज्योतिष तमसः परमुच्यते, verheven boven alle duisternis, boven de प्रकृति। ज्ञानं गम्यं ज्ञान ज्ञेयं हृदि सर्वस्य स्थितम्। ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं वो ज्योतियों का भी ज्योति है, जो तम से परे है और जो जानने योग्य है, जिसको बारे में हमें जानना चाहिए, और वह ज्योति आप सभी के हृदय में अवस्थित है। And this amazing in the heart of our ज्योतिषाम तो भगवान शिव के एक निराकार स्वरूप है, निर्गुण निराकार स्वरूप, और एक सगुण साकार स्वरूप, जिसको हम मूर्ति के रूप में जानते हैं, जिसको अवतार के रूप में हम जानते हैं। जैसे हनुमान जी है, वो स्वयं शंकर सुवन केसरी नंदन। तो सुवन कहते हैं सोन को, लेकिन लोग जो जानकारी है कहते हैं वो अशुद्ध पाठ है, कहते हैं शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान शिव शंकर स्वयं हनुमान के स्वरूप में प्रकट हुए, उनका पुत्र के रूप में नहीं, लेकिन स्वयं साक्षात भगवान शंकर है, भगवान मारुति के रूप में शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो इसको कहते हैं विभूति रूप। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि उस ब्रह्म जो भगवान शिव है, जिसकी रात्रि हम आज मना रहे हैं, महाशिवरात्रि, जो ज्योति का स्वरूप है, ज्योतिमय स्वरूप है, निराकार निर्गुण स्वरूप है, वही सगुण साकार पिंडी के रूप, पिंडी betekent link betekent teken, een teken van de aanwezigheid van het pure bewustzijn des mensen. लीलाम गच्छति इति लिंगम, जिसमें सारा ब्रह्मांड लय को प्राप्त करता है। In datgene waarin de hele kosmos zichzelf terugtrekt, dat is de oorsprong, dat is Bhagwan Shiv. En als dat zich weer manifesteert uit dat bewustzijn dat wij Shiv Bhagwan noemen, dan manifesteert zich, dat is de vorm van de pindi des mensen, dat is de shivling, is een teken van Hiranyagarbha, is het eerste teken eigenlijk in de kosmos van manifestatie. Vanaf de oorsprong, vanaf het bron wat onzichtbaar is, die we Brahma noemen, het pure bewustzijn noemen, het transcendentale bewustzijn noemen, tot het moment dat het zichzelf de eerste teken van manifestatie noemen wij Hiranyagarbha, dat is de Pindidoe. En daarom aanbidden we Bhagwan Shiv ook via deze Pindidoe. Dat is de Jyotirling, teken van de Jyotirling des mensen. En we aanbidden Bhagwan Shiv ook via de incarnaties van Bhagwan Shiv, zoals Maruti Nandan. Dat zijn incarnaties van. Dus 3 manieren waar we Bhagwan Shiv aanbidden. हमारे भक्तजन, समय को और मैंने ख्याल नहीं किया, भाई जी समय हो गया मेरे पास। तो
हम और ज्यादा समय नहीं लेंगे आपके, आप इतनी ज्यादा तादाद में आए, हम यही आशा करता है कि आप इस कथा जो मैंने कहा उसका ये मूल यही है कि आप अपने जीवन धर्ममय बनाएं। Dat u niet moet liegen, u moet niet leugenachtig zijn, u moet eerlijk zijn in uzelf, सत्य भाषण करना चाहिए क्योंकि सत्य ही धर्म है। Sत्य waarheid vertellen, naar waarheid leven, een authentiek mens zijn, authentiek leven leiden, dat is dharma, beste mensen. En u weet allen, Bhagwan Shiv Shankar, het voertuig van Bhagwan Shiv Shankar, wie is dat? आपसे हम पूछे तो क्या है? नंदी बैल। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। Het is een symbool van धर्म। De बैल, de os, de stier is een प्रतीक van धर्म। उसका अभिप्राय यही है कि आप अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, आप धर्म के रास्ते पे चलेंगे, आप धर्म के अनुकरण करेंगे, अपने जीवन में सत्य भाषण करेंगे, तो आपके हृदय में भगवान शिव आकर के बैठ जाएगा। जिस प्रकार से भगवान शिव नंदी पे बैठते हैं, बैल पे बैठते हैं, इसी प्रकार से भगवान शिव अवश्य ही आपके जीवन में आकर के आपको अपना जीवन, आपका जीवन धन्य बना देगा, आपको जीवन परिपूर्ण कर देगा, आपको अपने कृपा प्रसाद से आपको उसके ज्ञान प्रदान कर देगा, जिस ज्ञान से आप भगवान शिव को जान पाएंगे। क्योंकि हृदय ज्ञान मुक्ति, भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है, बिना ज्ञान के हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। Zonder kennis, beste mensen, zonder kennis van uw ware essentie, zonder de kennis van uw atma, zonder kennis van het pure bewustzijn wat wij Shiv noemen, is er geen moksha. En dat is het doel van onze menselijke leven, beste mensen. Om dat te ervaren. Daarvoor vieren we Shivratri. U bent hier vandaag aanwezig. Ik hoop dat jullie allemaal ook de Jagran gaan meemaken, de Abhishek gaan meemaken, de Archana gaan meemaken. En dat we hier een mooie avond zullen beleven. En de kripa, de zegen van Bhagwan Shiv zullen verkrijgen, beste mensen. Zodat wij in onszelf die spirituele oog kunnen ontwikkelen, waarmee we ons innerlijke kunnen zien, Bhagwan Shiv kunnen ervaren, Bhagwan Shiv kunnen zien. Daarvoor vieren we deze Navratri. En ik hoop, ook als u niet blijft, hoop ik, हम यही आशा, यही प्रार्थना करते हैं कि आप जो भी मनोकामना लेकर के आए हैं, कि भगवान शंकर आपके मनोकामना को पूर्ण करे, आपको तंदुरुस्ती प्रदान करे, आपको अपनी कृपा से परिपूर्ण करे, कि आप भी अपने जीवन में जैसे भी हो भगवान को जान सके, अंततो गत्वा भगवान को प्राप्त कर सके। यही मनोकामना, यही प्रार्थना को लेकर के हम अपने वाणी को यहाँ से विराम देते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से आप सत्संग में आते रहिए, अपने अपने सनातन धर्म के जो त्योहार है मनाते रहिए, त्योहार मनाते रहिए, अपना विश्वास जो है भगवान के प्रति, भगवान शंकर विश्वास रूप है, विश्वास की मूर्ति है, अपना जो विश्वास है दृढ़ करे शिव संकल्प के साथ। इतने कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, आप इतने दिन तक देर तक सुने। शांत भाव से हम यजमान को भीम रामदान और उनकी धर्म पत्नी जो यहाँ आज यजमान के रूप में बैठे हुए हैं, हम इनके साथ गेम खेले, वह साथ फुटबॉल। और आज आप जैसे सुन चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी से कि यहाँ पे जो कार्य किया है मंदिर में, het is onzichtbaar, maar beste mensen, zonder datgene wat hij gedaan heeft, zouden wij ons elkaar hier niet kunnen zien. Het is dat goddelijke eigenlijk, het onzichtbare, die zichzelf manifesteert via het licht. Hij heeft al het elektriciteitswerk gedaan. Zonder elektriciteit is er geen licht. इसी प्रकार से आपके अंदर शिव भगवान नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ई कार चला जाएगा आपके अंदर से तो आप शव हो जाएंगे। Als er geen energie, geen elektriciteit hier is, kunnen wij dit niet doen. Heer,
ये महान भाव ने किया है। इसको धन्यवाद देते हुए और इसके प्रार्थना करते हैं कि भगवान इसको भक्ति प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे कि लोक सेवा में ऐसे कार्य करते ही रहे और अंत तो रखवा जा करके परमात्मा को अनुभव करे। हरिओम तत्सत। धन्यवाद।